लेफ्ट राइट परसेप्शन नहीं है क्या कुछ? कैमरा बदल है यू बहुत बढ़िया. All right. Welcome back to DTF episode, I think 14. Uh, today we have Vikalp and I'm not the guest. By you Damn. introducing me like I'm the guest, I am the co-founder, and today we have with us Manik Airi. मना करा था वो एक चीज बोली थी देखो नहीं है. नहीं है. so phone खोल के दिखाइए. हाँ ये ले. Let's not start from this. Start. थोड़ा अपने बारे में बताओ भाई. Like how do we know each other? We know each other, like me and Mohak know each other since 5th grade. We were in the same school, the same class. Didn't like him initially. अब ठीक ठाक Funny है. how last person who was from LIS said the same thing about you. इसकी मिस ठीक नहीं थी. That's just how it is. The only difference is I don't like you right now much. Okay, continue. ठीक है भाई. अरे तो my like okay like he and I have a story कि how we met each other. Like I came to class, I sat down इन लोगों से अलग and then they were like कि bro इधर हमारे साथ आके बैठ chill करेंगे. नहीं ऐसे नहीं था. अरे but I said something funny and then they were like ये समझ गया. मेरे को मोहक की पहली मेमोरी है. हाँ. हम स्कूल में थे एंड आई थिंक इसका पहला दिन था स्कूल में. रैंडमली आके कहता डज एनीवन लिसन टू EDM म्यूजिक एंड मैंने कह दिया मी और हम दोस्त बन गए. बात खत्म हो गई. The nerd emoji है भाई तो. Does anyone listen to EDM? तो भाई that is all I listened to back then. Martin Garrix. भाई, Animals. मैं आज तक सुन रहा हूँ भाई. उसमें क्या गलत बात है? I remember this one time हम अपनी IT lab में थे. ICT lab था, IT lab, whatever. Yeah. We were there and I played this Afrojack की video in which there were naked women and you made me नहीं वो close that video. कश्मीर की थी ब्रो. हाँ, कराटे. I played that. Your ass got so scared कि मैं That shooting was karate. our only source of porn at that time bro. और क्या करते हम? Your ass was so scared you made me close that shit and then you got all mad about it. फिर मैं घर जाके देख रहा था. I mean ऐसा ठीक है. हाँ ये सबके सामने नहीं भाई. अच्छा फिर से यार फोन ही खोल यार रहा तेरे है. को बोला था ना मैंने. कोई दिक्कत नहीं है. 2 बार 3 बार खुल जाएगा. हाँ, चलो. टाइम है यार. Funniest thing we did in 5th or 6th grade. बता दिया तुझे. हाँ Funniest भाई. time. भाई जितना याद है हाँ. अगर Damn. बाद में याद आएगा तो बाद में याद आएगा. ये It's भी हो an गया. image. Why are you scrolling? My bad. Screenshot को scroll कर रहा है. भाई fuck man. भाई क्या? अबे I'm खुद reading भाई. Fuck off. तूने क्वेश्चन डिसाइड करी हाँ है. okay. Like back then, what did you think you wanted to become? I wanted to be a DJ. I Back wanted to be then a as well. producer. Yeah, back then as well. I'm Actually talk- नहीं. शुरू में फुटबॉल प्लेयर बनना था. सबको ही बनना होता है एक पॉइंट पे. या तो फुटबॉलर बनना होता है या क्रिकेटर बनना होता है. I like how was my whole class was obsessed with football. Even when I was in like 9th grade, 10th grade, this guy had left school by then. Bro, मैं अलग था भाई. मैं बास्केटबॉल खेलता था भाई. और उसकी मेरी ही हाइट नहीं बढ़ी है. This is shocking. It's just clearly. He was the only one. What? even when I met him, ये भी भाई बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेलता था. ये और तनिष दोनों. But स्टिल मतलब अकेला ही था भाई. मैं वहाँ पे भी फिर किसी हम लोग सारे यहाँ पे लड़के खड़े हैं. अकेले छोटे बच्चे होते थे. Like not even the same age category और in fact the gender category. छोटी लड़कियों के साथ खेलता था तू बास्केटबॉल. So in a way yes, he was kind of a player. कोई था नहीं क्या तुम्हारे स्कूल में? नहीं थे. देखता नहीं था ना इसको कोई. Well, answers convent. ये दिखने वाली चीज है तो भाई क्या बात कर रहे हैं? हेयर कट है बोल रही है. उस टाइम पे नहीं था ना. उस टाइम पे तो चोमू वो अंडरकट. ये साइड से छोटे ऊपर से लंबे. Tell me about some people that you hate in Lancers. Hate and Lancers. I can't say that. Why not? Why? Who the fuck is gonna come to your house Who anymore? the fuck is going to watch it?
You are- I'm 100% sure Lance's Lance's students को are कोई ना watching कोई तो it. देखेगा, They're gonna yeah. watch it, but Lancers. I mean, what are the chances? So, I mean, तेरे घर आके कोई नहीं था कुछ कह रहा. मतलब मेरे को मोहक नहीं पसंद था यार ये शुरू में. Bench. I'll be very honest, like मैं I'm ये beeping this shit out, by the way. नहीं वही था, मेरी और मोहक की लड़ाइयाँ बहुत हुई What was हैं. your first perception of this guy? Like the reason you भाई didn't शुरू like में him? तो EDM पसंद था तो मैंने कहा बढ़िया बंदा है. उसके बाद फिर बात करनी जब शुरू करी तब समझा. जब मुंह खोल दिया basically, yeah. That's when the downfall started, bro. Okay. भाई हमारी लड़ाई होती क्यों थी? होती क्यों थी पता नहीं, अजीब सी चीजें थी. Is it ज़्यादा कुछ the ऐसा fact था that नहीं. He's just very cranky about everything. हाँ Or the अबे यार fact that- इसकी ना ये फालतू में हर चीज. or the fact that he thinks the world revolves around him, या or the fact that he's a little bit too fat, or the fact that his height starts with 5'4", or the fact that I don't know. There's तू कहीं से पढ़ रहा है क्या ये सब? that pisses me off. पहले brought इतना कैसे याद है भाई तेरे को एकदम मतलब. That is what- Okay, in to sum it up, Vikalp hates me. We're just Number one on hater. number one hater. दिख रहा है. हाँ, good question. By the way, these are all from ChatGPT. Shout out, sponsor us. If you could relive one day from our childhood, which day would it be? I think it wouldn't be a day specifically, but like the days वो ambience mall जब पूरा डॉम आता था वो होता था अच्छा दिन. पूरा? डॉम जब आता था Ambience mall? ambience जब Bro, आते थे that's bro. crazy, क्या भाई हम हाइड एंड सीक खेलते थे मैच. क्या मजे आते थे. हाँ, ऋषिक रॉय अबे के तीसरी vlogs बार में- तक तो गार्ड पहचान गए थे हम छुपते थे वो हमें डेंट करते थे. वो हमें ढूंढते थे bro. We have videos of that happening, like on भाई YouTube. 7 floors और पूरी मॉल. हम पूरी मॉल में छुपते थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता था. 3 दिन तक गेम चल रही है ब्रो. बेस्ट. आगे बचे 3 दिन से. पता ही नहीं भाई. Damn भाई, इतना cool है. Ambits कितना cool है. 15 मिनट 30 मिनट 15 यार, ट्रैफिक के टाइम यार. ट्रैफिक के टाइम पे. हाँ 30 मिनट 15 मिनट दूर. तो भाई बस लाती है ना, पूरी बस वो आती भी है है. ना हाँ. हमारी. हाँ वो भी है. Bus used to drop you off. All the people bro, all those. Why अबे would- साथ देखो में क्या करे पूरे 30-40 लोग आते थे भाई. Mall बेस्ट. पे रख देते थे. We used to shop, eat and everything. बाकी टाइम तो हम हॉस्टल में छुपे हुए थे ना. भाई डॉम वाले आते थे 30-40 लोग और फिर बाहर से भी ऊपर से 20 लोग आते थे भाई. हम 50 लोग घूमते एक साथ. सारे बेस्ट. like, पूरा लैंसर्स घूम रहा है एम्बियंस में छोटे संडे बच्चों को. को भी यहाँ पे भेज देते थे. हमारे साथी तो थे सारे छोटे भी. मैं ही तो छोटा था भाई. और सारे बस. हाँ. How did you get into DJing? Because that that is the doesn't. reason we've called you here. हाँ. ओके फेयर. Apparently. Because he's That aspiring just- to be a DJ. That just doesn't happen. Like you can't just make anything a turntable. या यू So, कांट. yeah. So मेरे को खोना तो शुरू से था. जब आई थिंक जब से 5th grade only. Actually 2nd grade is when I got introduced to like you know electronic music, so I really enjoyed it. And then फिर मार्टिन गैरिक्स का देखता था. वो you know DJ मार्टी होता था उसका. And you know he had that entire Martin Garrix show that really motivated me because I was like यार ये भी तो बच्चा ही है अभी. वो तब 16-17 साल का था और वो कर रहा था. तो मैंने भी सोचा था उस टाइम में करूँगा. एंड देन इवेंचुअली 9th में आके मैं कोई तरीके से पापा को बोला पापा ले दो प्लीज़. और मेरे को उन्होंने कंट्रोलर लिया. ही थॉट 2-3 दिन का शौक है. पाइनियर का SB3 नथिंग टू ग्रेट. वह बहुत बेसिक जिसमें मतलब थे कम बटन्स और मतलब वेरी सिंपल. आई सिंपली फिगर्ड स्टफ आउट ऑन दैट. एंड देन प्रोफेशनली आई स्टार्टेड डूइंग इट इन 2022. लाइक मैंने पहला क्लब करा था तब अकीला में करा था. एंड देन बट वहाँ पे भी प्ले ही नहीं करता था मैं. 4-4 घंटे पीछे खड़े होकर बस देखता था कि वो कैसे होता है. एंड देन इवेंचुअली गॉट कनेक्टेड टू पीपल थ्रू दैट. नाउ the person who I did my first event with is now my boss basically. He's my manager, my management now. So it's going well, touch wood. गुड जॉब भाई. मैं जब अभी सोच रहा था ना, लाइक इवन दो आई कुड क्रिएट माई ओन सेट, आई डिड क्रिएट वन. सो उसके बाद मैं सोच रहा था कि लेट्स डू इट इन अ कॉफ़ी शॉप बिकॉज दैट बी फन. बट अब कॉफ़ी शॉप मिल नहीं रही है और ये दिक्कत है थोड़ी. कॉफी कैफे रे
I've seen that video. आधे दिल्ली को कैफे रेव करना है ब्रो सबको करना है. No one is doing it. That is where the need gap is. That's where the gap is 100%. But then again, it's very difficult to get people's attention to come to this kind of stuff. जो अभी मैंने एक रील देखी थी, लखनऊ में कोई बंदा कर रहा है, वहाँ पे लोग आ गए, but लोग लाना is a very very big task. When you don't have any kind of leverage on your name in the sense कि तुमने गाने नहीं बनाए ना, तो तुम्हें कौन देखने आ रहा है. बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए लोग क्यों जा रहे हैं. जैसे अभी चल डीजेइंग से दूर जाओ, औजला देख लो, तुम कोई भी आर्टिस्ट देख लो, अभी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके गाने जानते हैं. That's the main reason why people are going. Otherwise, no one gives a fuck. I went to Aujla चंडीगढ़ वाला bro. उसके खुद के गाने से ना जो शादी में गाने बजते हैं ना, he started singing those at the end and people were hyped to listen to that rather than his own songs, which is actually funny. Yeah, well, again, that's another way to get the crowd going. जैसे अगर मैं DJ कर रहा हूँ, right? I play Afro House. Okay, when I'm playing Afro House, थोड़ा underground चले जाता है वो. People don't really know what kind of music it is. So if I want to get the crowd going, I'll play a song that they know. Like चल Afro House के अंदर ही वो साला मूव बजा दो, सब ऐसे पागल होते हैं. Oh my God, लोग ऐसे होते हैं भाई ये गाना क्रेजी है, बट सुनते मतलब जब आ रहे थे वही सुन रहे थे वो, उसमें कोई बात नहीं है. 1000 बार सुना भी है, बट वहाँ पे बज गया. Oh my God, क्रेजी हो जाएंगे सब. So that is another thing. DJs don't really get to introduce the crowd to new music in Delhi, which is very difficult over here. Mixing doesn't matter as much as the song choices? I believe yes. Song selection is a lot more important than mixing. Of course, it's supposed to sound smooth and it's supposed to be in the same vibe, but otherwise song selection तुम्हारी अगर बढ़िया है ना, कोई भी तो मिल सकता है. I know so many DJs, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जिनकी mixing एकदम भाई क्या ही बोलूँ मैं. What happened was I was at पिछली बार भी बताया मैंने, I was at what is it called यार, Saz. Yeah, I was at Saz. The guys there were a few छोटे DJs. They were doing their own thing and they were playing nice songs. ठीक है, and they were mixing well as well. Then right after that I went to Monet and bro, the mixing is trash, but they were playing the right songs and it helps. It helps. Bro, eventually एक point पे in clubs लोग भंड हो जाते हैं. उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये बंदा कौन सा गाना क्या बजा रहा है उसके बाद, मतलब like what the mix is. They don't care. They only care कि गाना हम जानते हैं. That's it. अगर तुम क्रेजी गाने बजा रहे हो, मतलब you're playing proper bangers in the sense people know those songs, they're singing on top of their lungs, and then तुम बजा दो कोई टेक्नो अंडरग्राउंड, तो भाई मूड तो ऑफ होएगा ही ना बंदे का. जितनी पी लियो जितना कर लियो, वो तुम्हें तो गालियाँ सुनाएगा ही, क्योंकि उसको तो पता नहीं वो गाना. So song selection is a lot more important than mixing. What's your proudest moment as a DJ? Proudest moment. Proudest moment as a DJ. Okay, off the top of my head, so do you guys know who Hugel is? Yeah, so उसका जो अभी I Adore You वाला गाना है. Okay. Yeah, Hugel. So उसका जब announce हुआ था, मैं कुछ नहीं कर रहा था. I was doing nothing in the industry, if you want to say. Like मैं कोई काम नहीं था मेरे पास. सबको कॉल कर रहा था रोज़ कि भाई मेरे को गिग दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये कर लो, वो कर लो. कोई सुनने के लिए नहीं तैयार था. एंड Hugel अनाउंस हो गया था. मैंने मतलब आई रिमेंबर मैंने क्लोज फ्रेंड्स की स्टोरी पे डाला था कि भाई कुछ भी हो जाएगा लाइफ में सारा, बट मैं इस लाइनअप पे हूँगा. एंड exactly 2 months later, I was on that lineup. I was playing. So I opened for my idol. I've always looked up to that guy. He's been an inspiration for me since the day I started. And I was on that lineup. Nothing meant more than me. Nothing meant more than that for me. That's sick. और बताओ विकल्प, तुम्हारा proudest moment क्या था लाइफ में? I want to know. What's your proudest मेरा moment? proudest moment? मैंने एक बारी like बच्चे का प्रोजेक्ट बना दिया था. Oh, at least it gets me paid. देखो बच्चे के प्रोजेक्ट बनाने के पैसे मिल रहे हैं. Exactly. It's like a side hustle. Okay, so I'll tell you what I do is basically बहुत time पहले, like when I was in 11th grade, my sister used to make projects for like spoiled rich kids. So like she pawned off one of her projects to me. कहते तू बना दे, तेरे को भी पैसे मिल जाएंगे. I was like ठीक है. तो like the kid contacted me and like you know how modern school kids are, right? So they're like spoiled, मम्मी पैसे देने हैं, पैसे दे दो. तो I was like कि okay. Little Vikalp didn't know it was going to be his next job for the next 3 years. No, but okay. So पूरे साल में एक 2 month टाइम फ्रेम आता है जहाँ पे सारे बच्चे लाइक इनके जूनियर्स उनके सीनियर्स ये मेरे को कांटेक्ट करते हैं. अब एक बच्चे के थ्रू 3 साल में नेटवर्क इतना फैल गया है.
तो मेरे को मैसेज करेंगे कि अभी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, मैं बोला हाँ बन जाएगा, एंड देयर लाइक कि कितने लगेंगे, एंड आई एम लाइक 3K 4K फॉर लाइक 20 पेज प्रोजेक्ट विच इज नॉट मेरा दिन का एफर्ट है सिर्फ। भाई अगर मॉडर्न के बच्चे बोल रहे हैं तो भाई थोड़ा रेट बढ़ा ले। एग्जैक्टली भाई ना, फिर धीरे धीरे फिर 500 और तो ऐसे करते करते मेरी वो 2 महीने में ना बहुत अच्छी खर्ची निकल जाती है। आई मीन या नो शिट, बट यार वो रहती नहीं है मेरे पास, वो मैं खर्च कर देता हूँ। भाई मेरे पास भी नहीं रहती। हाँ, तो- मेरे पास भी नहीं रहती What भाई। exactly do you spend all of that money on? Let me answer that question for you. If you eat McDonald's every night, I think that's something I don't regret doing. I don't regret that either. I'd Like rather मेरा die of food poisoning than हाँ तो क्यों are you saying your mom poisons your food? no, Okay, but it's not good. okay. My mom no offense. Auntie, मेरी मम्मी मुंह पे अग्री करेंगी कि मेरे को खाना बनाना भाई तू That's क्लेश करवा रहा है भाई, crazy, क्या कर रहा है? But हाँ, so like that money goes either on clothes, but again my dad can also pay for clothes, so I don't spend it on clothes. कुछ कभी कुछ किसी थ्रिफ्ट पेज पे मेरे को दिख गया कि भाई हाँ ये बढ़िया लग रहा है, ये मंगा लेता हूँ। भाई तुम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर लेते हो? मेरे को तो होता है भाई मेरा साइज कभी नहीं आता, कभी मेरे लिए बहुत छोटा होता है, कभी यार बहुत बहुत बड़ा मतलब होता है। ऐसे आई वो उसको स्क्राउंज कर करके कुछ एक मिल जाए। I have written down H&M में मेरे को कौन सा साइज आता है, Zara के लिए कौन सा साइज आता है. I've already written it down. भाई ये जो पैंट पहनी है ना, मेरे को फोटो शूट पे किसी ने पहनाई थी, मैंने अगले दिन खरीद ली, मैंने कहा बढ़िया है ये, Size मैं यही fit आ ठीक गई है, है। फिट आ गई, मैं लेके जा रहा हूँ, बेसिकली ट्रायल के लिए पहनी थी मैंने ले ली। अभी रिसेंटली अर्बन मंकी की मंगाई थी, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे को नापो. मॉम एक्चुअली लाइक हाँ शी इतनी लंबी इंच टेप थी। bro I swear to God even I was surprised. 2 inch tapes and then measuring. हाँ so I was thinking of ordering an L, but I मम्मी की वजह से because she measured and everything I ordered an M and M fit me better. If I had gotten an L it would have been very baggy. यार मेरे लिए अलग चीज है, मैं मेरी वेस्ट पे ठीक होएगा बट फिर लेंथ फक होएगी, तो फिर मीडियम मंगाऊंगा, वेस्ट फिर लूज होएगी, फिर लेंथ ठीक Bro, my waist is patli and then my thighs are thick. So it He's got it's thick even thighs, bro. It's इसकी thighs भाई, इसको कभी तू शॉर्ट्स में देखना ना स्कूल की पीई यूनिफॉर्म में, the fucking curves man, crazy. okay, guys. We are outing Manik as gay. Bro, we had P shorts in P. वो हमारी पीई हमारे यूनिफॉर्म shorts था। इतनी बढ़िया, मैं आज तक पहनता हूँ ब्रो, बहुत बढ़िया है ब्रो, एडिडास, प्रॉपर एडिडास। Okay, इमेजिन the only good thing about Lance's convent is like the uniform was nice. Like it was also Adidas, but it was बड़ी, it was आप shit. लांसेस इंटरनेशनल की देख लोगे ना, आपके होश उड़ नहीं, जाएंगे। वो तो मैंने देखा। आए हाँ, देखिए ना बस, हम हाँ। आके हम ऐसे हो जाते भाई ये हमारे स्कूल की ब्रांच है। यहाँ पे इतने अंग्रेज क्यों है भाई? भाई ऐसे ही होता था, वो तेरे को याद है फेस्टिवल के लिए जब आते थे वो ऐसे देखते थे कि भाई ये I कहाँ आ was गए? lost in that building more than thrice. and then the good part is मैं छोटा था और मैं was like कि मिल नहीं रहा कुछ, मेरे दोस्त कहाँ गए सारे, मेरे गरीब दोस्त कहाँ गए सारे। तो there was this girl who used to sit at the reception. I think she was a student. So like she came up to me like फेस्टिवल के टाइम पे बैठती थी। हाँ। तो मैं बच्चा था और वो बड़ी थी। She was like मैं लेके चलती हूँ आपको कहाँ जाना है? I was like nutted his pants that ब्रो हमें बहुत मन, बिकॉज हमें जब अशर बनाते थे ना वो, हमारे को सिंपल वाज गेट आउट ऑफ क्लास फ्री कार्ड ब्रो, तो हम तो भाग जाते थे, भाई पूरे हमें जहाँ time- होना भी नहीं होता था भाई, 8 घंटे का स्कूल 9 घंटे हम गायब, हमें पता ही, उनको पता ही नहीं कहाँ है हम, सबको बोल देते थे कि हम अशर कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे क्लास, बेस्ट। हम ऐसे घूमते भी थे एंड आउट ऑफ ऑल द फ्यू इयर्स दैट आई वाज अशरिंग एक बारी मेरे को स्टॉल भी मिला है, मैंने भाई पूरा स्टॉल हैंडल करा एक बार। आफ्टर यू वेंट देयर यू लेफ्ट। it's funny how मैं लांसेस छोड़ गया था, हाँ तू लांसेस में कब तक था? 9th। हाँ तो मैं तेरे बाद ही छोड़ा है, मैं भी 10th में ही छोड़ा है, मैं 10th के बाद छोड़ा है। अच्छा so maybe you weren't near my stalls. I handled a stall once. It was fucking crazy. स्टॉल में क्या था? I'll tell you what we did. We weren't supposed to do this. So basically, every time they were giving us coupons, they were the same coupons that you could buy food with. हाँ Now, no one. The thing is, Yeah. I'll tell you something. This is something that no one should do. I don't appreciate. I would like to say sorry. I would like to say sorry. The coupons that were coming, the people who were buying the coupons, that money actually goes to charity. this is not going well. Please don't continue this story. So बात खत्म ब्रो, समझ गया। the coupons that were supposed to come to me, I was supposed to tear them off and throw them, but I used to use them to get money. So get the fucking food from the counters. But okay, they were used coupons, right?
they used it on our stall, हाँ, so and the then I money used already them. went to charity, right? But it would have gone twice, na? If I was also going and buying food, that money is, you know what is happening, right? But okay, you can say you need charity to. Buy I food. mean, honestly, dorm वाले बच्चे were struggling, bro. इनका दिखता था, bro. People were coming to my stall using my coupon to order food, bro. We had such a good feast that day, bro. मजा ही आ गया. Cause like हमारा usually जो college का वो था, sorry, college बोलने लग गया मैं. School का जो food होता था, it was comparatively better on Christmas carnivals. अच्छा, तू क्रिसमस कार्निवल की बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ फेस्टिवल की बात कर रहा है. अपने जब ये लोग आते थे यार. अच्छा ये I think we've seen each other LLS में कभी. नहीं देखा ही होएगा. नहीं यार, ये कुपोषित था यार बहुत पहले. उस वक्त तो बहुत And you are very clear to see. मैं तो बहुत clear to see. भाई, he was very hard to miss, bro. What are you talking about? You are very hard to miss. Have you seen me? I might have seen you Crazy. from Lance's convent. Okay. Okay. भाई और कोई फन बातें बता भाई. लांसर से और कोई फन बातें बता यार. भाई लांसर्स में और क्या होता था. वह एक्चुअली मेरे को याद है, तूने तो छोड़ दिया, तू MYP में चला गया था, मैं तो IG में था. हाँ. तो जब हमारा क्या कहते हैं एग्ज़ाम टाइम था, आई रिमेंबर जब ये कोविड के टाइम की बात थी, जब ये साला सिर्फ 10th और 12th के बच्चों को बुला रहे थे, जैसे हमें तो कोविड नहीं हो सकता, हाँ, राइट. हाँ. तो हम जाते थे भाई, टीचरों को हम गायब, हम वहाँ पे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे. एक बार वो नेट्स होते थे ना हमारे, तो वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं हम, मतलब हम 10 लोग लड़के सारे क्रिकेट खेल रहे हैं. एक दिन से ना हमें आवाज़ आई, आई थिंक इट वाज भूपिंदर सर, द बास्केटबॉल कोच, राइट. उनकी भाई तेरे को याद है आवाज़ कैसी थी, राइट. वो और ऊपर से बेसमेंट में कैसे गूंज के आती हो, वो ऐसे कुछ उन्होंने बोला, बॉयज ऐसे बोला था कुछ. हमारी फट गई, हम सारे फ्रीज हो गए. उसी वक्त बत्ती बंद, हम गायब. हम फिर गए कैफेटेरिया में, हम सारे हाफ रहे. सर पूछते कहाँ थे तुम? सर कहीं नहीं, क्लास में थे. हम तो पढ़ रहे थे, हम आज जूस पी रहे हैं, हालत खराब हमारी, पसीने आ रखे हैं सबको. हम तो क्लास में पढ़ रहे थे सर. हमें तो पता नहीं क्या हुआ, कोई प्रूफ नहीं था ना उनके पास कि हम खेल रहे थे. कैमरा लगाए तो हुए थे उन्होंने, चलता एक नहीं था बस. I'll tell you. पूछा नहीं हाफ क्यों रहते. नहीं. मेरे को ना actually I understood how the cameras work. Yeah. So what happened was I could actually use the cameras in school. Yeah. अपने लैपटॉप से I could see the recordings. भाई अपना IT डिपार्टमेंट देखो यार. IT department ठीक करो. Why do you want the cameras? No, the thing is, he said they don't work. They do work. They work. Bro, they know too much. I Bro. have seen shit. No one should be seeing in school. Bhai, you remember that black guy who was dating that Latina? हमारा senior था. I think his name was Demi. Ah, yeah, Demi, yeah. Just, I don't want to go further, but he understood. समझ गया. Sex. ठीक है भाई. This is getting clipped, man. Sex. Getting clipped. Shouted out sex. Crazy. So. भाई बहुत चीज़ होती थी, मतलब हम actually we cannot say the stuff that's happened in Lancers. स्कूल बंद हो जाएगा ब्रो. कोई नहीं भाई, हॉस्टल की बातें मैंने और अर्पित ने भाई दो एपिसोड भाई. भाई गुड फॉर यू भाई, मैं तो नहीं बोल सकता. तू बोल सकता है, भाई, तू मुझको- बोल. क्या व्हाट आर यू स्कैर्ड ऑफ? क्या करेंगे, डिग्री ले लेंगे तेरी. भाई मेरे को याद है. अरे मतलब भाई अपने यार Okay, so सर्टिफिकेट. एक second. What like are you pursuing anything besides DJing? So I am, क्या कहते हैं, not currently doing anything. Okay. I'm thinking of applying to online college because I don't want to be out of Delhi right Obviously. now. I mean थोड़ा scene में अब मेरा नाम बैठ रहा है, so I feel like better stay here for now. Yeah, not sure. Thank you. But हाँ, that's the plan as of now. But let's see. इससे पहले तो actually 3 महीने पहले I was planning on being a pilot. I was studying also, सब कर रहा था. And then पापा की बात किया, पापा मेरे से नहीं हो रहा. I Aviation couldn't is do it. tough. It's tough, bro. It takes a lot of time and energy. and bro. money. Money as well, yeah. बहुत भाई ज़्यादा. मैंने तो ये सुना है कि like after a point it's just like you just put it on autopilot and everything. I mean, Like the studying yes, is all there to just- some extent. I'll tell you why. The studying, what I've heard is the studying is always there just in case autopilot fucks up. Basically, pilot's also there for that. I mean, if I'm wrong, I'm not sure. But जितना मैंने पढ़ा था, not pilot की पढ़ाई नहीं करी थी मैंने, but जितना मेरे को पता चला लोगों से कि वो ऑटो पायलट में डलता ही है ऊपर जाके, तुम टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए तुम्हारे पास मेन कंट्रोल होता है, And राइट? if autopilot fucks up, it's when the pilot needs to get in control, else he can fuck off. हाँ,
basically. should not. He shouldn't though. He shouldn't shouldn't. though. He shouldn't. Yeah, basically, भाई है ना, अब you can't always rely on machinery to, because it's 300 हाँ, lives, हाँ, हाँ. more than 300, 150, 300 तो बड़े वाले होते हैं, but उतनी when you have fuck बोलने जा रहा, Somebody. when you have that much pressure on you, you can't depend on technology, you know, यही है. Cockpit. It's a funny word. It is a very funny word. Yeah, what were they thinking when they thought of that? Motherfucker called it. Shaft. It's a shaft. Tube. It's a shaft. Shaft is also same only. Shaft means flaccid object here. No, but in flight terms, in aviation terms, what's a There are shaft? shafts, bhai. ऊपर they run through the plane here. No. Yes. No, I don't think so. You're fantasizing about shafts. Okay, so coming yeah. back to some professional things. नहीं मैं पूछ रहा था. Yeah. फिर स्क्रॉल कर रहा है भाई. स्क्रीनशॉट है. Man, fuck off. Deep dive. ये कैसा वो है subhead. I asked chat. Deep dive. How would we deep dive in your life? No, bro. इतना भी नहीं हो सकता. If we could have a reunion with everyone. ये सारे स्कूल related क्यों है? तो मैं तो भाई बचपन से जानता हूँ ना, तभी तो बचपन की तो बातें करूंगा. जितने सालों से मिला थोड़ी जिससे अभी मैं बचपन में क्या बात करूंगा फिर? This is the first conversation we're having in 5 years. 4 years. 4 years. 4 years. हम तो स्कूल में भी नहीं बात करते थे. ठीक है, मैं भी नहीं करता देर से. बोल रही कि तूने मेरे को अपने पास बुला के बात करी थी. मैंने इसको बस ऐसे कॉलर से उठा के बोला आजा मेरे साथ बैठ जा. एंड बस तब से हम दोस्त हैं. ऐसे ही बनते हैं मेनली. वही होता है ना, वो बड़ी बड़ी मिल इसको जाती मैंने है. उठा लिया. उस टाइम पे पतला था थोड़ा. Really? एंड नाउ इज जस्ट भाई मैं हो गया था पतला. I'll tell you, कोविड के टाइम पे स्टॉप ईटिंग, बाहर खाना घर पे ही खा रहे थे ना. हाँ. हो गया था मैं पतला. उसके बाद फिर what happened was college happened. फिर रोज बाहर का I खाना. feel you. I feel you. तो कॉलेज नहीं करा तूने? क्या? कॉलेज बिल्कुल नहीं करा. क्या नहीं करा? कॉलेज नहीं. तू कॉलेज में नहीं है? तूने कॉलेज नहीं करा. मैंने, हाँ बिल्कुल भी नहीं. फिर मेरे 12th के बाद पढ़ाई chill. मेरी बस की बात ही नहीं है ब्रो. मेरे बस की बात है ही नहीं. सही भाई. I mean, at least what Eh, you look- lack for in college academics, you're making up for it in something else. So that I mean, yeah, technically yes, of course. and you know the motive is to earn cash. I mean, yeah. Is it okay? Good question came because of cash. Is it a good career? Pay wise. If I talk about right now, then for me, I'm being 19 and earning, it's pretty good at You're this 19? age. Yeah. So having that amount of money coming in at this age, it's pretty good. But if you say someone who's at the age of 24, 25 doing this and earning this much, I don't think it's the best. Like they need to work harder or choose something else, in my opinion. My question is that now next question is, considering that you're still living with your parents and earning that much, and you're considering कि 24, 25 is probably living alone and earning that much. No, I'm considering कि अगर वो उस एज पे पेरेंट्स के साथ रह रहा है, मतलब according to me, should be contributing in the house as well. हाँ. Yeah, so फिर contribution मुश्किल है. अगर जितना मैं अभी कमा रहा हूँ, मैं 25 पे कमा रहा हूँ, भाई मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है. मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है. Then I cannot do this. So that was actually one of the main reasons why I didn't want to take this seriously. 3 साल पहले तो शुरू करा था. मेरे को सब बोलते थे इसको कर follow it. अगर तेरे को करना ही है तो भाई पूरा Do it अंदर घुस जा. properly. 3 महीने पहले तो मैंने डिसाइड कर, मैं 3 नहीं एक्चुअली जून में I started taking it seriously. But then उससे पहले तो I was doing it. I had a good amount of shows also. I had good amount of big gigs as well, right? And I was doing it, but मेरे को अंदर से वो नहीं हो रहा था कि ये मेरे को पूरी लाइफ करना है, because मेरे को financial stability कभी नहीं देखी, right? But then I Do you realized. see it now? Yes, now I see it because I feel like it's all in your mind, bro. अगर तुम्हें लगता है तुम you're gonna be the best, you're gonna be the best. So that's how it works. So is it something now that you'll take seriously, or is it just like a hobby? I am taking it seriously. No, though. I'm asking him. Oh, because अच्छा, he you. wants to be a DJ too. Dekh, I'll say one thing. It's
difficult. The initial time is so demotivating. It's so difficult. I feel like I'm still going through that phase right now. But it's very. I have not it performed. fucks with your I head, have bro. not performed a single time. I'll need to do that once or twice to at least Bro, no. understand. Perform करना is the best thing. That's the problem. It's so addicting because भाई तुम कोई गाना बजाओ और तुमने उसको फिल्टर आउट मतलब म्यूट करा हल्का सा so crowd can sing it. वो तुम्हें सुनाई देगा ना तू अडिक्ट हो जाएगा भाई उस फीलिंग से. But the problem is getting consistent gigs. Now you can't keep getting gigs all the time, right? I started off मैं रेजिडेंसी से स्टार्ट करा जब मैं हर रात कहीं ना कहीं होता था, राइट? मतलब कहीं पे था, अकेला में था मैं, हर रात मैं वहाँ पे होता था, 4-4 घंटे 5-5 घंटे हर रोज़ करता था, राइट? एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंडिविजुअल गिग्स. आई वाज इंडिपेंडेंट फॉर व्हाट 2 years, नथिंग, आई गॉट नथिंग. ऐसे ही मेरे को जो थोड़े थोड़े मिल रहे थे, राइट? अब मेरे को ऑफकोर्स ज़्यादा मिलने लग गए हैं बिकॉज आई हैव पीपल दैट आर पुशिंग टू प्रमोट मी, बट अब मिल रहे हैं वो जाके. एंड वो भी इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे बिकॉज एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करनी होती है व्हेन यू आर अ आर्टिस्ट. यू कांट जस्ट If you can just be हर जगह everywhere, अगर then- एवरीवेयर प्ले कर लोगे तो भाई बंदा तुम्हें बोलेगा अरे आज नहीं जाएंगे, कल तो इसने करना ही है, कल वहाँ चल लो. तो एक एक्सक्लूसिविटी बिल्ड करनी होती है. बट येस देन अगेन जब तुम शो कर रहे हो कंटेंट इज आल्सो वेरी I इंपॉर्टेंट. tried to get a gig. They were like, कि I think I forgot their name. I'll show it to you later. These guys were, हाँ, so basically what they do is पूरे इंडिया के अंदर they do coffee वाला scene that I talk. नहीं. ओके बीप दैट आउट. या हाँ, so they asked me to send my press kit. पूरा दिन प्रेस किट बनाई मैंने. उसमें पूरा दिन मैंने प्रेस किट बनाई. डाला क्या? मैंने डाला कि भाई I have performed in college, my own college. ओके I lied about that. Bro, I'll tell you one thing. Don't lie about this. Don't lie about your experience. Because I know someone, I'm not going to name him, but he lied about his experience. And he charges a crazy amount of money. But even though he's a He fucked it up he's though. like, He fucked it up. 2 साल, He दो fucked it दो महीने पहले उसने स्टार्ट करा था. Oh. But fucking didn't know do shit. And bro, जब उसने प्ले करा मैंने सुना मैं बोला हैंचू ये ले रहा है इतने पैसे मतलब ये कर रहा है. The thing is, I'll tell you, because you know how it works, and now I understand maybe 40-50% of how it works, we'd be able to tell. Yeah. People who are normally listening wouldn't be able to tell that. They were bro, but the problem is वो उसी तरीके से कर रहा था. क्राउड में कोई कहता भाई कौन चूतिया आ गए. Acha, crowd is also saying it. That I saw one guy go like this. I saw him like Boomerang what activity. the fuck कर क्या रहा है. मैं आता मैं रुक जा तुम. मतलब I've seen a lot of that happen. मेरे साथ भी हो रखा है. मैंने- मेरे को भी एक बार बंदे ने ऐसे करा था. बहुत सी आई थी मेरे को. मेरा पहला इवेंट था आफ्टर वेरी लॉन्ग आई रिमेंबर. ब्रो ऑफ कोर्स स्टेज फ्राइट आ जाता है बिकॉज माय so my boss current I won't say boss but like he's the head of the guy, so he's the guy who got me on the team. No, not even. Let's just say Lakshin. Let's call it. Yeah, he's the main guy of my management company. He's the face. Yeah, he's the face technically, right? And उसने मेरे को Bhai, we need okay. पहला We gig need दिया. more mics, bhai. I realized bro तब से ये बोल ही नहीं पा रहा कुछ. कोई नहीं, I'm loud तो चल जाएगा. बीच में रख. हाँ. हाँ ये स्मार्ट. क्या कहते हैं. सो जब मेरा पहला गिग था आफ्टर वाइल ही गेव मी ही लाइक ओके आई एम गोना गिव यू 15 minutes इन द एंड. आई सेड ओके आई विल डू इट. भाई वो 15 मिनट भाई इतने लोग देख के तो मैं वैसी फट गई, मेरी हालत खराब हो गई. दैट वाज द बिगेस्ट क्राउड आई हैड डन एवर. बिफोर Yes, I दैट think- उससे मैंने करा ही I नहीं think था. That is good though. आखिरी के 15 minute is actually comparatively better than the first 15. भाई ऑनेस्टली मैं तेरे को बोलूँ किसी भी टाइम कर लो तुम, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट. तुम्हें लगता है कि ब्रो मैं गाने तो बजा लूंगा. ब्रो गाने बजाने की बात नहीं होती, लोगों को फ्लोर पे रखने की बात होती है. अगर तुम लोगों को फ्लोर नहीं रख minute everybody is on the floor. The starting भाई 15 निकलने लग गए थे people are लोग. अबे लोग तो निकलने लग गए थे. starting. तो वही था ना, वो जो लोग निकल रहे थे उनको वापस अंदर लाना. दैट्स द ट्रिक. सो भाई थोड़े बहुत गाने बजाए, कर लिया, और उसके अगले दिन आ गया भाई आई वांट टू साइन यू. आई वाज लाइक बल्ले बल्ले. मैं भाई I'll see. The thing is, I have not done it a few. हाँ तो मैं अपने पहले प्रेस किट पे लिखा गया. एक तो मैंने बोला कि मैं कॉलेज पे एक बार परफॉर्म किया है, एंड आई रोट कि हाउस पार्टीज पे करा है. आई डिडंट लाई अबाउट शिट की बैंड जो किसी क्लब में करा ये सब. Parties plural. वन तो हाउस पार्टीज कैसे हुआ? हाउस पार्टी हुआ ना? वन. हाँ देख अब देख ठीक है, तूने उनको कह दिया कि तूने हाउस पार्टी पे प्ले करा है, तूने इस पे करा है, वो करा है, ठीक है. वो बोलेंगे वाह इसने यहाँ करा है तो उसको ये वाला स्लॉट दे दो. अब तू उस स्लॉट में परफॉर्म ना कर पाए, तूने उनका इवेंट खराब कर दिया तो तेरा ही नाम खराब होगा ना आगे जाते हुए. वो तो है.
नहीं बट हाँ आई हैड नो आइडिया हाउ एल्स टू गेट तो मैंने वही करा अपनी प्रेस किट में, मैंने कुछ नहीं लिखा कि मैंने ये करा। मैंने कहा करनी है बात तो कॉल करना, या मेरा इंस्टाग्राम देख लो, मेरे इंस्टा पे सब कुछ है। लेट्स press kit is like a It's resume, basically your resume, right? Of course, it's smart It's to put all the things you've done, but I feel like for me, I want to put, if you want to put me on an event, you will see for yourself, bro, अगर तुम्हें करना है। Like मैं makes a lot of sense. बढ़िया His play actions करूँगा यार। speak louder than the fucking press kit. लाइक प्रेस किट पे वो मैं लिख सकता हूँ यार, ओके कुछ भी लिख दे, हाँ, कुछ भी लिख exactly, सकता हूँ हाँ। भाई, मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ। अगर तुम्हें रियल प्रूफ चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पे चल जाओ, आई हैव एवरीथिंग ओवर देयर, आई हैव एवरी सिंगल थिंग दैट आई हैव डन विद माय सेल्फ, आई हैव डन विद ज़फ़ान, आई हैव डन एवरीथिंग, सो आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट। Something I remember is you introduced me to Zafan का गाने back in 8th or 7th grade. भाई ज़फ़ान को हमने 8th में सुनना शुरू करा था। You I forgot the गाने का song नाम I see हाँ, you हाँ। like me, हाँ, yeah, वो है। ज़फ़ान ecstasy। Okay, that's the same song I told you my ex told me about, जो तुम्हें Spotify पे सुना रहा था भाई ना। हाँ I think हाँ हाँ that is the last time probably listened to him, and then recently only I saw his song pop up randomly, shuffle पे डाल देते हैं ना। हाँ, if it wasn't up His to me song होएगा। with that- Timbaland, हाँ? Timbaland, नहीं अच्छा 24 कैरेट भाई 24K Golden. हाँ golden yeah that guy So he used to be friends with 24, अच्छा but then anyway falling out or whatever. But initially when 24 started, that's when Zafan also had started. So they made music together for a bit, and then they had. a उसका falling रैंडम out. सॉन्ग आ गया, मैं बोलूं भाई हाउ हैज ही डन इट विद, ये तो बड़ी बात भाई है ये तो but- बहुत पुराना गाना है। This came out in Randomly 2019. shuffle पे आ गया Yeah, भाई। this came out in 2019. He re-released it. अच्छा। आगे जाके, but हाँ, it was like archives से निकाला था उसने। भाई समटाइम ब्रिंग हिम ओवर भाई। Guys, Zafan is a busy man, यार। देखते हैं चलो। Now, Big name. I mean मतलब he has started Gurgaon में, I think he's pretty famous in Gurgaon and Delhi. but Delhi में बाकी- तो yes, he's got a good name. He's got a good Delhi and Gurgaon. Zafan तो is Zafan, bro. Started with ZZ earlier, and then now he's Zafan. Oh. Yeah. हाँ अपने states में है, बाहर अभी तो इतना I don't think so. No, but we did a show in Bangalore also. A great crowd reaction. There were people singing his music is there as well. Like, I still remember. Nice only. हम Bangalore में we did Zomaland where we opened for King. अच्छा। And मतलब ये 4 बजे वाला slot था bro. This is like the first performance. First few right? performance, हाँ। तो भाई मैं अंदर घुसते ही माइक पे चला दिया like Bangalore how we feeling? Like, are you guys excited for King? This तो सारे भागते हुए आ गए। मैं 3 बार बोला और एक बार में इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया। मतलब लोग आ गए। आ तुम्हारे चूतिया ना। एंड में वही बोला वो लाइक बट फर्स्ट बोला वो। तो फिर ज़फ़ान आया। आई स्टिल रिमेंबर देयर वर पीपल इन द क्राउड सिंगिंग हिज म्यूजिक एंड लाइक आफ्टर द शो देयर वर पीपल लाइक टेकिंग पिक्चर्स ऑफ हिम। दैट्स व्हेन आई रियलाइज लाइक भाई इस बंदे में है दम। तो आई मीन मेरे को तो पहले से ही पता है बट मैंने वो फर्स्ट हैंड पहली बार देखा था अब प्रोडक्शन आती देखो ऑन द लाइक आई एम लर्निंग आई एम डूइंग किस पे? इट लर्न लाइव एफएल पे भाई। एफएल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कंपैरेटिवली टू एबल्टन। FL is actually easier. It's actually the easiest one. लुक्स मोर कॉम्प्लिकेटेड भाई। यार वही है ना, देख तूने डीजेइंग जब स्टार्ट करी वो भी तो कॉम्प्लिकेटेड लगी ना हाँ, तेरे को शुरू में। लग- When you understand what the buttons do, then it's simple. So I've done a few mashups जो मैंने ऐसे ही बना रखे हैं, just like starting off remixes and all that kind of stuff. I'm making stuff, but by next year, yeah, there'll be releases like proper releases. remixes खुद से like taking out the vocals and putting it over some other things and shit like the mashups kind of. Yeah. So mashups तो अभी of course ज़्यादा ही कर रहा हूँ. Remix मैं बस playing around to understand. So bro, the thing is You need to fuck with up production, थोड़ा सा, yeah, हाँ। with production you need to मतलब करते रहो. You're not wasting any time. Anything you do, even if you're on the software for 20 minutes, it's worth it. Because वो आगे के लिए तुम्हें prepare कर रहा है bro. तूने एफएल तो खरीदना पड़ता है, खरीदा तूने? हाँ तो भाई खरीदने होते भाई, पैसे आ रहे हैं तो खरीद लिया. इन्वेस्टमेंट मैं है bro, it's तो- an investment in the मैंने future. एबल्टन लाइव लिया था तो लिया नहीं, वो अपना ट्रायल पे मेरी गांड मर गई तो मैंने उसको खरीदा नहीं. इट्स प्रीटी हार्ड भाई. वही है ना, you need to understand what the buttons do. Once you understand what the buttons do, you're good. अगर मैं डीजे होता तो मेरे को एक बार क्राउड कंट्रोल करना है, कितना फन होता है. Hey oh. किस दिन अपने साथ लेके चलूंगा, किस दिन मैं अगर परफॉर्म, अगर इफ आई डू इट, टच वुड, If I do it- God forbid. इफ आई डू भाई इट, तेरा आर्टिस्ट नेम क्या है? है नहीं. क्या रखना है? MHK.
मोहॉक नहीं Vowels हटा दे बस. नहीं ऐसे लोग बोलेंगे मैं और X बना नहीं रखी कर नहीं रखी Mo. then I'll have to become like MX, I'll have to have a HXK. alter ego मोबा workspace. मोहक बत्रा मोबा Okay. कोई क्या टाइम हो रहा है को भी रख ले. MKB. हाउ ओरिजिनल ब्रो हाँ so I'll have to have an alter ego if I do something like that नहीं वो नहीं चाहिए वो नहीं करना Alter You're ego? gay alter ego. ये मार्शमेलो है भाई that's an alter ego Press comms. तो मैंने भी तो आयरी रखा हुआ है ब्रो तो that's a surname भाई हाँ तो मैंने सोचा ऑल्टर ईगो But क्यों Irene चाहिए is उसके such a लिए cool surname. है ना इट्स लाइक Yeah, डैम वो मैं वही सोच रहा you- मैं फंस गया था मेरे को याद है अभी भी मेरे को ना पहले इवेंट के लिए उन्होंने बोला कि लाइक तेरा आर्टिस्ट नेम क्या रखना है मैं तब फंस गया भाई 3 दिन तक ऐसे बैठा रहा कि क्या करूं क्या करूं मैं भी वही वही मैं भी मैं 3 दिन तक ऐसे से इतना सीरियस होके बैठा हुआ था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं मैंने बोला आयरी कर दे और फिर मेरे को सब बोलने लग गए लाइक आयरी है क्या आयरी क्या है वो पहली बात तो लोगों को बोलना नहीं आता है एरी एरी करते एरी एरी फिर आयरी आयरी अब धीरे धीरे आयरी हो रहा है तो मेरे को दिख रहा है कि ब्रो प्रोग्रेस है लोग जान रहे हैं मेरे को बट उससे पहले तो एरी था I'll tell you after you have heard this surname in that show Netflix का है DTF Netflix पे एक शो अच्छा I was not going all the way to YouTube पे एक एपिसोड है इसके अंदर I was not gonna do that Netflix पे एक शो है भाई इसके अंदर अपना वो वाली मूवी कौन सी है 3 Idiots के अंदर एक एक्टर है यार बोमने रानी Bowman. हाँ उसके अंदर एक The virus, the professor किसकी बात कर रहा है? हाँ नहीं इसने एक्टर का नाम सही बोला है बोमन रानी की बात कैरेक्टर पूछ रहा हूँ तेरे से. उसके अंदर he's married this woman they are about to break up they're about to have a divorce उसके अंदर उस बंदे का सरनेम आयरी होता है आयरी आयरी सरनेम तो AYRI? इसके लिए हाँ. करा था. Are you being serious? या Like the actor's name is that or the character's name? कैरेक्टर्स मेरे को तो लगा मेरा नाम मैं ही आई रही हूँ भाई एक लौता दिल्ली में भाई नहीं एग्जैक्टली इवन आई वाज लाइक कि भाई आई हैव नेवर हर्ड दिस सरनेम ये नो वंस एवर हर्ड इट ब्रो मानिक तो चल ठीक है लोग जानते हैं आईडी तो किसी ने सुना ही फ्रॉम लाइक कोलकाता नहीं फक ऑफ ब्लीप दैट आउट ब्रो बेमतलब है ना डैड आई लव यू दो दैट्स नॉट द केस आपने बस मिडिल नेम डाल दिया बस स्कूल के उसमें जरूरत नहीं थी But your surname is cooler, so nobody is going to. हाँ मैं बतरा बोलता हूँ, अच्छा नहीं Bro, the thing लगूंगा is, भाई देख आर्टिस्ट नेम तुम्हारा यूनिक होना चाहिए right? मैं बतरा अच्छा नहीं लगूंगा ए बत्रा DJ yeah I wouldn't like that that would be nice Batra ji, आपका phone. देख मैं मोहक कहता but there's actually an artist already who's doing he's making good like नाम है उसका मोहक ही है उसने मोहक ही रखा हुआ है तेरा middle name है कोई? नहीं होगा. क्या क्या मतलब होगा मोहक मनोज बत्रा. तेरे पापा का नाम. मनोज तेरे पापा का नाम क्या है? मुकेश 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 बत्रा. मोहक मुकेश बत्रा. ये भैंस इतना बड़ा नाम अपने बाप का भी बता दे अब भाई हम भी बोले तेरा भी मजाक उड़ाए मेरे पापा का नाम एक्चुअली मेरे पापा का नाम तेरे पापा राज, से similar है. राज. उनका पूरा नाम is राजेश मतलब he short राजेश राकेश सेम यार but Raj है वैसे on the Raj. Raj and legal documents. So Vikalp Rajal. I think By the way- Vikalp is a unique enough name. his dad has a YouTube channel he Oh, he yeah. makes vlogs He has 40 Sick. subscribers. 40K Yeah. why I need to see that bro Raj vlogs No, Damn. it's Travel with Kalani. travel with Kalani क्या Travel with मेरे surname कल्याणी ओके भाई if I had Kalani surname I'd use it bro I don't have that. कल्याणी I have यार Batra. that's actually Kalani. कहला shut the fuck up I need a gangster to love me better. They do. To always forgive. just like me for you Anyways, हाँ तो I'll keep that in mind when I want to BJ. When you want a BJ? हाँ DJ. I said D. Oh, the B. ये क्या नया शुरू है ब्रो एक तो आजकल ना चीजें बहुत बढ़ गई हैं सिचुएशनशिप मेरे को पता चला आई डोंट नो व्हाट द फक इज Oh, I सिचुएशनशिप hate that word. I don't know what it is. I can't hate it or like it. I don't know what it is. मेरे को आज तक समझ नहीं आया. मैं explain करता हूँ I'll be the one to break it to you let me break it I am breaking it to him I am break I see the funny. I don't even know if I should laugh at that because I don't know that. I am breaking it to him Okay. let me break it to him Okay. Break it to him. let me break it to you so
You had to get the glasses on for this, bro. ओके यार मैं पैच भूल गया था डालने क्या? चश्मे अब डाले हैं कोई बात नहीं. हाँ ओके It's okay. It's okay. I was breaking it to you. So basically, situationship is you both like the fact that you guys are together, but you don't want to give a name to it or like call each other boyfriend, relationship. unlabeled relationships. Where you have the But technicality to go around anywhere you want. नहीं. Look, that is between the two of you. Whether you say कि let's not fuck around with each other people, लड़की हमेशा but करेगी. लड़की हमेशा करेगी या लड़का हमेशा करेगा. That fuck that. But when it happens, you can't blame the other person because you guys weren't dating. Again, technicality. We weren't dating. तो अगर तुमने so it's basically a relationship without the tag, right? Without the Without tag, the responsibility, without the tags, without the commitment. but it will feel as bad. तो अगर तुम वो कर रहे हो, It right? feels- Commitment तो है ही ना. Commitment तो है ही. No, you're not getting my point here. Implied commitment है, verbal commitment. Dating में जैसे you call each other, you have names, right? You have girlfriend and boyfriend, right? Yeah. You understand? उधर if one person cheats on the other one, they have the obligation to be angry. They have that obligation to do what? Key their car, burn their house. Yeah, situationship में अगर किसी के साथ कर लिया तुमने कर कुछ, लिया। तो भाई तो कोई कुछ नहीं कह सकता कोई तुम्हारा. कुछ कह नहीं सकता is also a Date thing, हो but गया। उतना ही बुरा लगता है जितना dating में लगता है. Obviously उतना ही बुरा लगता है यार. It's the shittiest fucking thing. No shit, it'll obviously feel bad to you because if you're spending so much time with that person, you're talking to that person, you're going out with that person, you're doing things with that person, right? And then they go ahead and then they're doing the same, they do something with someone else. Obviously, I'm gonna feel like shit because I'm like, even though you're like, I don't want to invest that much time and energy into this, you're still doing all of that. भाई Makes no sense. makes no fucking sense. तुम मतलब कुछ भी कहने लग जाते हैं bro आजकल. मेरे को मेरे को इसलिए क्योंकि बिल्कुल एक पसंद दोस्त ने ही बोला नहीं था I'm in a situationship with this guy. I'm like, what the fuck is a situationship? It makes no sense. makes You're no telling Situation me. is the guy doesn't like her back. That is the situation. No, I And felt then like there is she didn't like the guy and back. then You probably know about the friends with benefits. People call it. It's basically friends with benefits only, yeah. but उधर थोड़ा सा emotion भी डल जाता है situationship में. थोड़ा सा emotion भी आता है. just splash it. Just enough to fuck Splash your of mental it. health. हाँ, Just enough, to fuck your just mental enough. Because it's okay. I don't have any romantic feelings for you. Because but I like your best friend more. Because but Vikal, but तेरे best friend मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा. Let me have you instead. I'll have you back. This is personal. This actually happened. No, अरे पागल है क्या? It is just for the. This comedy actually purposes. happened though. But okay. उसको माइक दे यार तू. Okay. What's your current status? My current status is not to be talked about. Okay, situationship. No, funniest part is that's my unit. Okay, so भाई मेरे को जो चीज का पता ही नहीं मैं हूँगा कैसे उसके अंदर. अभी तो इससे पूछ रहा हूँ. are you in a good state? I'm great, bro. He's in Delhi. I'm in that. He's currently in Delhi. वो मीम बहुत बढ़िया था. Hi, I'm in a bad state. Delhi. भाई अभी लड़की ने भाई मेरे को अभी पूछ रही थी. I was at where I'm in the other campus. हाँ, they were talking about how like this state is not safe and everything. मैंने बोला भाई मेरे से बात मत कर. It's not the state that's unsafe, it's the people. It's the people. मेरे से बात मत कर. I'm not safe to be around. Let people like know. भाग जा बहनचो. दूर रह मेरे से. Damn, that's. Bro, I'll never understand Delhi hate, bro. Delhi is the shit. Like, I love. Actually, it's very. I personally- So sense. Delhi I have standard is forced. I have always wanted to live in Gurgaon. भाई गुड़गांव बढ़िया है. मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ गुड़गांव. भाई Comparatively मैं तो बड़ा हुआ हूँ better. गुड़गांव में. हाँ. गुड़गांव is amazing, bro. Comparatively. मतलब अगर तुम मेरे से पूछो दिल्ली और गुड़गांव, of course दिल्ली में I was born in Delhi, but I've lived in Gurgaon my entire life, and Gurgaon is Gurgaon, bro. I think Gurgaon is better because it has a better standard of living. But 100%, Delhi feels like home. The crowd is also better here. I mean, it is. That is why there's a better standard of living because everybody from Delhi is shifting towards. They need to have more सब clubs in वहीं आ रहे हैं, Gurgaon. bro. भाई. But then this is a problem also. जब initially मैं रहता था तब इतना खाली होता था गुड़गांव. कहीं से कहीं, bro. Any place from my house was 10 minutes. कहीं भी चल जाओ 10 मिनट ही लगेंगे तुम्हें. ठीक है, 10 मिनट या कम, of course. अब भाई 15 बार सोचना पड़ता है घर से निकलने से पहले. इतना फक ट्रैफिक. आज मेरे को 2.5 घंटा लगे मेरे को पहुंचने में यहाँ Oh तक. yeah, big ups to this guy for actually showing up. Because if it was any other person who has ever been on my pod, they would have been like कि भाई अगली बार करेंगे. देख मेरा शो पास में ही है इसके बाद. मेरा तो बनेगा. I have a show after this.
So by the time this comes out, he has a show. Else I would have told you guys to go to the show. आ कहाँ जाओ पे भाई। आज? Chica, yeah, Sick. it'll be fun. हाँ, back to Gurgaon. Bro, Gurgaon is just भाई वहाँ पे भाई गलेरिया A वगैरह tier, भाई। bro, A tier. गलेरिया, फिर एम्बियंस और क्या क्या है। बस वैसे बात खत्म। यही तो है। वर्ल्ड में कहाँ? Bro, वन होराइजन। चल ठीक है, अब मैंने गो कार्टिंग का वो जो मैच बेसमेंट में है। बेस में अबे वो याद है स्मैश वाली जो 2 फ्लोर वाली होती हाँ। थी, वो थी बढ़िया। फिर स्मैश वेंट बैंकरप्ट, तो वो अलग बात थी, बट भाई बहुत बढ़िया था। I think Smash went bankrupt. bowling now. भाई यहाँ पे Honestly, भाई bro. कितना महंगा हो गया भाई, 300 रुपए की बॉलिंग पर पर्सन। भाई। No, but Smash Dwarka is still open. So it's just like 2 minutes from my college. भाई मैं को द्वारका जाने में लग जाएगा 2 स्मैश खुला हुआ है अभी भी? हाँ द्वारका में है। द्वारका एंड आई थिंक एल से कोई जगह है। भाई गुड़गांव में तो सारे बंद हो गए भाई। हमारा वो ऑयस्टर्स भी बंद हो गया ब्रो। वो याद है वो वाटर पार्क? हाँ भाई वो हो गए 3 साल हो गए उसको, तो वो कोविड में ही बंद हो गया था भाई। बहुत टाइम बताया यार वहाँ। हम लोग कभी ट्रिप पे गए थे, तू गया था वहां से हमारे साथ? तुम कांगड़ा गए गया भाई? था? मैं तो मेरा टूर्नामेंट था, मैं बाहर गया हुआ था। अबे यार कांगड़ा नहीं चलाई है। नहीं, कांगड़ा में तेरे साथ तो था ही। कांगड़ा में तो गया था। फिर कौन सी ट्रिप थी हमारी जिसमें तू नहीं मेरे गया? को लगा यू आर टॉकिंग अबाउट जो ऑयस्टर्स लेकर गया था एक बार डांसर्स। अच्छा नहीं, वहां नहीं गया था मैं भी नहीं गया था वहाँ तो। वह तू दुबई गया था कॉलेज से, स्कूल से? ना, नहीं। और कौन सी ट्रिप थी? अबे वो हमारे से लेते तो हमारे से इतने पैसे थे, आधे तो अपने पास रख लेते थे यार वो। तो दुबई गए थे स्कूल से? नहीं, मैं कांगड़ा गया था। ये कांगड़ा हम गए थे यार। यार। क्या तू क्या कर रहा था भाई वहाँ पे? तू क्या दोनों कर क्या रहे थे भाई? याद ही नहीं 9th में था ना तू? हाँ। कांगड़ा गए तो थे हम। तू था यूरेका वाला ना? यूरेका वाला भाई जिसमें we हम- stayed at camps with हाँ cockroaches। कीड़ों के साथ हगना कीड़ों पड़ के रहा साथ था हगना सुबह। पड़ेगा, हाँ। अबे हम सुबह जब जाते थे सारा एक बंदा एक अनाउंस कर देता था कि ये वाला टॉयलेट साफ है, वहीं लाइन लगी होती थी ब्रो। I had not showered for 4 days। भाई I didn't shower for 4 days। honestly I'm not saying it's right but I understand, ठीक है? वो बहुत fuck scene था वहाँ bro। bro I was scared for first of all it is इतना सा door, इधर से पहले खुला हुआ, you can see their legs and इतना जितना मैं हूँ हाइट में उधर तक somebody could climb and see me naked। My ass was scared। नहीं भाई वो तो क्रेजी ट्रिप थी यार। एक तो भैंस से पहले मच्छर कीड़े कॉकरोच लिजर्ड स्कॉर्पियंस माँ की जो दिखता था वो सब वहाँ पे पहले कांगड़ा। At least you were in an area that can justify with getting away with these sort of like कीड़े हैं, ठीक है तुम बाहर कैंपिंग करो, कीड़े होंगे। Imagine going to a top tier college of India. I went to IIT Roorkee. I went to IIT Roorkee for a summit and the experience I'll tell you. हम 3 दिन थे वहाँ पे। मैं नहाया इतना मैं आज तक मेरे को प्रिविलेज हुई, मैं घर जाके मैं रोया था लिटरली कि भाई मेरे घर में गर्म पानी आता है, साफ सफाई है। सिचुएशन बताता हूँ मैं। हम लोग गए पहले तो वी वेंट अ डे प्रायर टू द एक्चुअल डे वी हैड टू गो, सो दे डिडंट हैव प्रॉपर अरेंजमेंट्स। दैट वाज द रीजन कि तुम एक दिन पहले आ गए इसलिए अरेंजमेंट्स अच्छे नहीं है। अरेंजमेंट्स इन क्वेश्चन बीइंग, हम जा रहे हैं मॉर्ग की तरह, एक बड़ा सा हॉल है, गद्दे लाइन से बिछा रखे, कुत्ते सो रहे हैं अंदर बेड पे। मेरे को फोन आता है कि भाई आजा, तेरे बेड पे कुत्ते ने सुसु कर दिया है और वो अब अपनी सुसु में बैठा हुआ है। I'm like bro I did not come up for this। फिर ये हुआ हमारे साथ पहले दिन पे, तो ठीक है हमारी एक्सपेक्टेशंस अच्छा अभी और हुआ है? हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। अब देख IIT रुड़की है, वहाँ पे ना सुसाइड बहुत नॉर्मलाइज्ड है फॉर सम रीजन। तो हम जब गए थे उससे माय बैड, तो उससे एक 2 वीक्स पहले किसी ने करी थी सुसाइड। सो एवरीबॉडी इज वेरी चिल अबाउट इट। वी आर टॉकिंग, हम बैठे हुए हैं कि भाई ये क्या है यहाँ पे, ये तो कुछ भी नहीं है, खाना भी इतना गंदा खाना, उनकी मेस का खाना इतना देख के भाई मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई, डायरिया, फूड पॉइजनिंग सब। एंड देयर टॉकिंग अबाउट इट कि भाई तो याद है अभी कहते राहुल ने तो सुसाइड कर ली थी ना। एंड आई एम लाइक आई एम ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, आई एम लाइक भाई एक सेकेंड, ठीक हो तुम, इज एवरीथिंग ओके? कहते नहीं Shut up bro, we don't talk about it। Okay, so someone did that LIS में? नहीं तो when did you take the mic? We'll later talk about it। हाँ तो खत्म कर। हाँ तो बस इट्स लाइक सुसाइड बहुत नॉर्मलाइज्ड है वहाँ पे। प्लस अब जब हमें बेटर अरेंजमेंट में शिफ्ट करा, हम अंदर गए। आई हैव अ वीडियो, आई विल शो इट टू यू आफ्टर द एपिसोड व्हाट वाज द कंडीशन, बिकॉज आई विल टेल इट टू यू बट इट वोंट जस्टिफाई द एक्चुअल कंडीशन। I'll put it in the video। हाँ, सो डाल दियो, तो ओवरले डाल दियो। पूरा रूम इज रीकिंग, द रूम इज रीकिंग ऑफ डेथ
pigeon feathers, dead rats everywhere. Is this on video? Video happens. See, graffiti on the walls, and when you like see behind the door, there's a poster, suicide prevention helpline. And apparently, सारे rooms के back door पे there's this same poster everywhere, suicide prevention helpline. If you're scared, call us, talk to someone. भाई आईआईटी चल क्या रहा है तुम्हारे वहाँ पे? ये क्या बदतमीजी है भाई? And IIT बॉम्बे हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो IIT बॉम्बे, IIT रुड़की. अब DU है भाई, हमें जाना था IIT बॉम्बे बिकॉज वी हैड मनी, बट एवरीवन डज नॉट, सो दे वर लाइक कि भाई थोड़ी सस्ती जगह चलते हैं. It is funny. हाँ चीप स्केट था, पैसा नहीं है तुम पे. बिकॉज कैटेगरी वाले लोग होते हैं तो ठीक है, बाय ब्रोकीज. बट अब हमें IIT रुड़की, आई वाज लाइक हाँ, कैंपस सुंदर था, कैंपस नो डाउट बहुत अच्छा था. रहने का इतना गंदा. हम देख रहे जो हमारे दोस्त IIT बॉम्बे गए हैं, उनको होटल्स में रुकवाया, लाइक गुड होटल्स. तो क्यों नहीं गया था बॉम्बे? बिकॉज वो था हमारा कॉलेज, जो इस ये एक सोसाइटी, दो सोसाइटीज ने जाना था, तो हमारी सोसाइटी IIT रुड़की गई बिकॉज ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, एंड उनको लेके गए IIT बॉम्बे बिकॉज दे वर रेडी टू स्पेंड. देखो अंडर प्रिविलेज में डाल दिया था. यस, मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल फिर वहां गया था. द पीपल वर नाइस विद मी, सीनियर्स और हम लोग थे, हम लोग अच्छे थे, बट जिनकी वजह से Tell them about the very cheap liquor that you had that day. That day, oh wait, I had teachers, I think, for the first time. Wow. I don't Wow, think you peasant. I don't think I've even seen a bottle of teachers. I have seen it because in videos. see, that was the only available option of liquor over there. In Like, Roorkee, yeah, no हाँ, shit. because I don't even know where it is. कुछ भी नहीं है रुड़की में. The name रुड़की is because वहाँ पे IIT रुड़की है, I think, because there's nothing to see or to go. IIT in the Ironically, fucking. there was an Apple store, like a good furnished अच्छा एप्पल का स्टोर. तो वी वेंट देयर ऐसे टाइम पास करने के, भाई और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, यही थोड़ी बकचोदी कर लेंगे. जाके गेम्स खेल. हाँ, जाके अपने आप की पिक्चर का वॉलपेपर लगा. कद्रोप खेल रहे हैं. मैंने अलार्म लगा दिया था लिटरली फोन में, तो हम यही कर रहे थे. उनके लिए भी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी कोई कौन जाता है वहाँ पे एप्पल स्टोर. तो बस उसके साइड में एक ठेका हमें दिख गया, देसी ने ठंडी बियर. तो हम ठंडी माइट एज वेल. तो ठंडी बियर देखे तो आ मजा आएंगे. हमने 2 कोरोना ली तो लाइक पीने के लिए, और उसके साथ हमने बोला कि भाई डीजे नाइट है. डीजे नाइट थी वहाँ पे, तो डीजे नाइट भी कुछ डीजे नाइट था नहीं उसमें. तो हमने 2 कोरोना उठाई अपने लिए, 2 ईच. हमने टीचर्स की छोटी सी बोली मिनिएचर. हमें बोला कि भाई ठीक है, आज का काम हो जाएगा, चलते हैं वापस. हम पिए, हमने शॉर्मा वॉर्मा खाया, और फिर हम चले गए वापस अंदर भंडो के. तो बट दैट वाज द मोस्ट फन आई हैड ऑन दैट. वहाँ शॉर्मा मिलता है? हाँ, तो शॉर्मा वाज नाइस. I don't remember. My probably a fucking pigeon, by the way. Just You never fucking know. you never fucking know. I mean, ठीक है, it was tasty. You had जो विदा स्वाद था. you had pigeons in Roorkee after drinking teachers. Yeah. So that was the highlight of the trip because of some. अबे हमारा तो उल्टा था. कांगड़ा में हमारे को ना भाई food was गंदा यार. food was amazing. What are you talking about? That was the only good thing about that trip. Eureka knows how to do that food. भाई तुम देखो यार, नाइट आउट पे गया था तू. तो हमने खाना बनाया था. क्रेजी. हाँ, तुमने तो वहां पे बनाया था ना. तुम तो जब वहां पे थे, हमें फ्राइड चिकन मिल रहा था ब्रो. Fuck off भाई. ये क्या चल रहा है? तुम लोग वहां पे दाल चावल आलू बना रहे हो. नहीं गए थे. हम अगले दिन गए थे ना. अच्छा भाई भी दो टीमें, 3 टीमें थी. 2 टीमें पहले गई थी और फिर हम अगले दिन गए थे. मैं भूपेंद्र सर, we cooked food. अबे गधे, हम सेम टीम में थे. भूपेंद्र के साथ तो मैं था. हाँ. तो फिर हम सेम टीम में थे क्या? मैंने प्याज काटे थे, मैंने आलू काटा था. एक सेकंड, अंश, ईथन और वो सारे तेरे साथ थे ना. हाँ. मैं भी तो था ही. मेरे साथ आर्यन भी था. जब रात को हम बारिश हो गई थी, हमें नीचे पहाड़ से उतरना पड़ा था. हाँ, तो मैं भी तो था ही. संयम भी था ना. करते थे क्या सही में? भाई we had fought भाई. अबे यार प्रॉब्लम, I'll tell you. ये हमने लड़ाई करी, ठीक है. I don't हमारी even ऐसी remember लड़ाइयाँ होती why थी. it happened. हम बात Do you करते remember why it थे. happened? नहीं, नो मेमोरी अबाउट दैट ब्रो. हमारी लड़ाइयाँ होती थी और 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाती थी. मैक्स 2 हफ्ते. But राइट. this time भाई फिर हमने ना इस बार हमने ना ऐसे बड़ी स्ट्रेटेजिक लड़ाई हुई थी हमारी. हमने ना स्कूल जब खत्म हो रहा था तब करी, फिर समर की छुट्टियां आ गई और फिर ये चला गया MYP, मैं चला गया IGC. ऐसी कभी ना मिले हम, हमें ना पता क्या चल रहा है. बस फिर हमने बात ही नहीं करी. then he became friends with this one guy I really didn't like. Shout out Ayush. अबे नहीं यार, he just had. Yeah, Ayush was a sweetie bro. I like that guy. He didn't like me, so he was acting very mean to me, and I was like, "Behan chod, what do you think you are?" So I just. Yeah, Ayush was very. He was a good friend of course. भाईचारा based guy. भाई कि भाई हैं सारे. ठीक है, लड़कों में तो इतना थोड़ी भाव देते हैं भाई. कोई नहीं यार. हाँ वो भी है. हाँ तो फिर You should since blame then. yourself for people not liking you. I mean, if I were you, I would never step out of my house.
मैं तो तू है मेरा दोस्त ही है ना मैं क्यों हो रहा हूँ क्यों मेरा दोस्त ही है ना फिर तू I'm just mean to you on your face. I talk about you अच्छा बहुत. लड़ मेरा पूछ ले बेटे, किसी से भी पूछ ले. बहुत अच्छी चीजें बोलता हूँ मैं पीठ पीछे. भाई मैटर हो गया मैटर. मुंह पे मत बोलियो किसी दे दूंगा. हाँ लड़ लो भाई लड़ लो भाई लड़ लो आओ लड़ लो. हाँ तो भाई we stopped talking I think 8th grade. हाँ 8th grade. हाँ 8th grade एंड में हमने बात खत्म कर दी. 2 महीने की छुट्टी आ गई फिर ये चल गया MYP. मैं चल गया IG. तो हम वैसे ही नहीं मिलते थे. हमारी क्लास भी सेम नहीं होती कुछ नहीं The था. thing is I took भाई तूने IG ली क्यों? What did you think was बहुत बढ़िया था भाई. क्या करा? क्या भाई तूने MYP क्यों ली? तू पागल है. मैं तो पर्सनल प्रोजेक्ट सुन के मैंने बोलती थी ना. फिर IG में पता चला फ्री लेसन मिलता है. हम तो सारे चले गए MYP में एक ही क्लास. अबे सुन MYP में एक क्लास IG में 3 क्लासें भाई. I think the difference between IGCSE that was that कि you can pick your subjects, the ones that you want to pursue. देखो पता I है? personally in 8th grade didn't know what the fuck I want to do with my life, so I took MYB. I could drop one science, any one of the sciences. We had 3. We had physics, bio, and chemistry. So I could drop one of those, and That also in the second year. second not the year, first year you have to do all of it. So अब मैं देखो एक मेरे को बात- ये समझ आया कि I want to drop all the 3 sciences. That's what I learned in I think 9th, and then I left because of COVID. मैं देखो एक बात बताऊं. Hmm. लांसर्स वाले ही पागल थे. MYP में भी तुम सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. लांसर्स तुम्हें हाँ जानबूझ but के वो साथ हमारा चूतिया करवाता बनाता था. है पता है मेरे को. हाँ I learned that later. It's something IB में जो होता है. हाँ in IB they basically didn't want anybody to choose their subjects because they wanted to show कि हमारे जो students हैं वो इतना पढ़ाई करते हैं कि they choose all of their तुम्हारी पढ़ाई subjects. देखी है मैंने. भोसड़ी के CBSE is not. you know CBSE is 10 times easier than IG. bro. IG. IG and MYP. and MYP. I'll tell you why. तुम्हारे I'll give you a reason. तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन बुक में से आते हैं भाई. Exactly. तुम्हें तो पता हो तुम जो I'll क्वेश्चन tell you. तुम्हें पेपर में मिल रहे हैं ना. I'll tell you something very funny. I can walk in a room of random people learning a random subject and I'll probably know more than the students. I have seen this happen 10 times in my life and it is actually not a joke. अभी मेरे को 2 टीचर्स अलग, एक ने मेरे को स्टाइलिंग सिखाई है, एक ने मेरे को सिखाया है फोटोग्राफी. दोनों क्लास के अंदर the students should know more than me because they're actually learning these subjects and I'm learning business. I know more than them in their own subjects. टीचर से ज्यादा पता है देखो. नहीं, not teachers. अच्छा, the मैं students. बोलूं I teachers am का- answering students हाँ. who should answer those questions. It is something that only comes when your brain is opened up because of IB. CBSE में your brain becomes narrowed down only to the book. This is something I've seen with IB students भाई. बट इट्स सो मच इजियर टू पास दैट भाई. तुम्हारे 2 सेट एग्जाम होते हैं. देखो पता है एक बार में मेरे को 14 एग्जाम देने पड़े थे. मेरी तो हालत खराब थी. एक दिन में 3 एग्जाम हो रहे हैं भाई. 2 घंटे के हालत खराब होती है IG, ब्रो. I would say it's more fucked up because it is the mix of MYP and CBSE. दोनों भाई हमारा भाई इट इज वेरी बुक बेस्ड. तुम्हें बुक से ही पढ़ना था पूरा. सब करना था. एंड आई वोंट से इट वाज डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग. इट वाज जस्ट सो मच स्टफ टू डू. मतलब मैथ्स 2 अलग पढ़ो भाई. एक साल पहले ये वाली मैथ्स और ये वाली करो. फिर ये वाली मैथ्स और ये वाली करो. Maths I think CBSE का is tougher. Maths I think is like CBSE मेरे के पास तो maths भाई है. सुन भाई देख पढ़ाई क्या होती है भाई. आजकल सिंपल है. एजुकेशन ये हो गया कि तुम पढ़ाई करो एग्जाम दो. ठीक है. exam इट्स हटा रहे हैं. ये लोग कर लो बात. एग्जाम हटा रहे हैं. हम पागल बैठे. हम झक मारने बैठे थे यहाँ पे. हम जो एग्जाम दे रहे थे हमारी हालत खराब कर दी यहाँ पे. मेरे से साला भाई मेरे 11th और 12th में सिर्फ 3 सब्जेक्ट थे. मेरे उसमें हालत खराब हो गई भाई. मैंने होम स्कूलिंग करी है आखिरी के 2 साल. सोचा कि भाई आसान होएगा. 3 सब्जेक्ट करेंगे बात खत्म हो जाएगी. ब्रो एक भाई मैथ्स की मेरी 4 बुक थी. मेरे को तो याद भी नहीं. इतना रोया ना मैं पढ़ते पढ़ते. मेरी हालत खराब ब्रो. It is not easy. The thing is हमारा थोड़ा पता था कि आएगा क्या. And I think जो questions मैं पढ़ के भी गया था ना अपने बोर्ड्स के लिए 12th में, I have read those questions before. इतना मेरे को था कि मतलब इतनी पढ़ाई कर ली थी कि मेरे को questions याद आ रहे थे कि मैंने 70% पढ़ा क्यों है. आए थे फिर? हाँ 70% क्यों आए थे? 80 आए थे भोसड़ी के. झूठे. 78 आए थे. ठीक है. 80 80 राउंड ऑफ कर लिया मैंने. Round off कर दिया. I mean ठीक है. That is after IB. I don't know what रट्टा मारना is anymore. I don't IB understand. honestly MYP में We रट्टा don't मारने का know कोई what काम रट्टा ही नहीं था is. ब्रो. इससे तो मैंने लिया नहीं था. That is I'm telling you बचपन से लेके I'm using calculator in maths since 7th grade. तो कॉलेज में also you use maths, use calculator everywhere. अबे यार but 10th की maths is pretty hard भाई. If you're coming from a back. 10th में calculator का कोई काम नहीं है.
भाई देख सीबीएसई मेंटालिटी ब्रो, हमें तो कैलकुलेटर मिलता हमें तो था। सिर्फ कैलकुलेटर से करनी आती है ना चीज़, मैंने भी not अभी getting- पायलट के करने के लिए मेरे को अपना मैथ्स का पेपर मैंने फिर से मैंने सोचा चल ठीक है मैं फिर से दे देता हूँ अपना मैथ्स का पेपर, इवन तो मेरा क्लियर हो गया था आईजी के उसमें, टू मेक इट इजियर फॉर माई मतलब आगे देयर वर टू मेनी फॉर्मेलिटीज, तो मैंने बोला चल मैं फिर से दे देता हूँ। भाई मेरे को पता चला मैं पढ़ रहा था 2 महीने पढ़ाई करी, मेरा टीचर कहता कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है तू, मैंने कहा हाँ कैलकुलेटर ले लिया है, कैलकुलेटर हो ही नहीं सकता, और भाई मैं पिछले 4 साल से तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ हर चीज़ के लिए। भाई it is very hard, it's like how do I explain, भाई मेरे को लॉन्ग डिवीजन फिर से सीखनी पड़ी, मेरे को तो याद भी नहीं थी। it's like asking a badminton player to stop using their hands, man. हाँ it's ऑनेस्टली exactly कि भाई that hard. यहाँ तो हम पैरों से खेलते हैं। पैर से हाँ सॉकर खेल रहे हैं, it's exactly what happened to me. You People just don't say get it, people soccer. think I'm fucking stupid. It is really That hard. is why तभी तो बोला ना सीबीएसई इस चीज में मुश्किल है, Like, क्योंकि you- रट्टा you मारना don't पड़ता have the, क्या कहते हैं भाई बट इफ आवर आंसर्स आफ्टर द कैलकुलेटर डिडंट मैच टू द डेसिमल, हमारा वो आंसर गलत होगा, हमारा गलत होता था। सो इट नीड्स पेपर के स्टार्ट में लिखा होता था ब्रो कि अगर तुमने इतना नहीं करा। even if it doesn't हाँ, match but to the decimal, He's got a point though. It wasn't that strict in CBSE. जैसे मैं जितना पढ़ा मैं वो उतने में समझ आ, you don't need to do that like You get marks significant for figure working that working के भी मार्क्स, भाई नाम लिखने के मार्क्स लग रहे थे भाई उस पॉइंट पे तो। अब बीच में बस 500 का नोट रख दो, पता है फेल क्योंकि- करते हैं अब ये इस चीज के ऊपर। वही तो अब पास फेल है ही नहीं, अब you have to just give papers for the sake of giving papers. There is no pass fail. No, they're removing everything Marks. and हम तो झक मार रहे थे ना, तो पागल हैं हम। All right, I think we should wrap this up because मेरी maid घर पे कुत्ते के साथ अकेली है and she needs to go home. and she does weird things to Kobe. वो Yes. So this was bestiality भाई यहाँ Only I पे। can do weird things to Kobe. this was episode 14 and we'll probably have him again some other time. And We'll have- did you have fun? Go to his, Oh, I loved it, bro. I loved it. One of his concerts. We'll put a vlog in his concert. Done scene bhai. Done, Go done. together. Done. पार्टी करेंगे पार्टी। Party nahi. So Did you have fun? Yeah, I loved it bro. Enjoyed. More like a normal conversation. So you guys can leave comments of whoever wants to come next. We'll probably call people who are doing something with their lives. We don't call jobless people over here. All right. Oh, अच्छा, okay, yeah, I'm doing something. I thought you were calling me jobless for a second. अरे bro. नहीं, I'm saying we don't call jobless motherfuckers here. we did. We did one. You. I'm not fucking with you. हमारा ना best friend आया था पिछली बार। I know, मैं देख चुका हूँ। भाई What do you mean? हाँ तेरा ही है क्या? भाई गेट कीप क्यों कर रहा हूँ अपने दोस्त को? All right. Bye bye. Bye bye. Bye.